Hello dear shining stars, a very warm welcome to your EVS class. So here we are going to start with class 5 EVS book Eco Tour, a book of environmental studies by Coral Publishers. Welcome children to your EVS class. So let's start a new chapter today, chapter number 11 of unit 6. And unit 6 is Knowing World Around Me. Under this unit, the chapter name is Internal Organs of Our Body. तो आज हम पढ़ेंगे अपनी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, जो अंदर, इंटरनल मीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके बारे में. Our body is the most precious gift of nature. नेचर का ये बहुत ही अनमोल तोहफा है हमारी बॉडी. It performs several functions at the same time. एक ही टाइम में बहुत सारे functions perform करती है. To perform all these functions, human body possesses group of organs called organ system. अब इन वर्क को या several functions, जो अलग अलग functions हैं, इनको perform करने के लिए हमारी जो human body है, हमारी जो body है, उसमें group of organs हैं. बहुत सारे organs हैं जिन्हें कहा जाता है organ system. There are two types of organs in our body, internal and external organs. दो तरह के organs हैं, एक है internal organs और है external organs. An organ is a structure which has a particular job to perform. Organ क्या होता है? Organ एक structure है जिसके पास एक particular काम होता है perform करने के लिए. It enables a person see, hear, speak, walk and eat, etc. at the same time. तो ये जो organ है ये हमें क्या करने के लिए help करता है? एक ही टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं. हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम चलते हैं, हम बोलते हैं, हम खाते हैं. Some organs do just one job and other organs do more than one job. अब कुछ organs ऐसे हैं जो एक ही काम करते हैं और कुछ organs एक से ज़्यादा काम करते हैं. So now let's get started. We know the world through our senses. हम अपने senses के through ही सब कुछ जान पाते हैं. They help us to enjoy our food, listen to music, think and understand. ये senses ही हैं जिनके कारण हम अपना खाना enjoy करते हैं, music सुनते हैं, music को enjoy करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं. Imagine if you had to live one day without one of your senses. अब ये जो senses हैं, इनमें से कोई एक sense के बिना अगर imagine कीजिए आपको रहना पड़े पूरा एक दिन, then what will happen? List the things you would not be able to do without that sense. अब वो जो एक sense अगर उसके बिना एक दिन रहना पड़े तो उससे आप कौन सी चीज़ नहीं कर पाएंगे? Which sense you felt was very important and which was least? अब कौन सा सेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, आपने क्या फील किया, दैट यू हैव टू राइट. इंटरनल ऑर्गन्स. क्या है ये इंटरनल ऑर्गन्स? द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर फाउंड इनसाइड द बॉडी. एज द नेम सेज, इंटरनल मीन्स इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर होते हैं ऑर्गन्स. दे इंक्लूड the brain, heart, lungs, stomach, liver, kidney, windpipe and intestine, etc. जो internal organs हैं वो ये. Knowing more, eye, ear, nose, skin and tongue are our sense organs. देखिए ये है sense organs, eye, ear, nose, skin and tongue. ये 5 sense organs हैं. Life lesson: all cultures and religions teach us to have faith in God and respect each other. कोई भी कल्चर, कोई भी रिलीजन, जितने भी कल्चर हैं और जितने भी कल्चर फॉलो किए जाते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, सभी एक ही चीज़ सिखाते हैं कि ईश्वर पर विश्वास रखो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो. Now children, let's read about the first internal organ, brain. The brain keeps the body in order. एक ऑर्डर में रखता है ये ब्रेन हमारी बॉडी को. द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. इसे कहा जाता है बॉडी का कंट्रोल सेंटर. इट इज लोकेटेड इन द स्कल. स्कल के अंदर होता है. इट इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर. द ब्रेन वेज अबाउट 1.4 kg and contains millions of
nerve cells. ब्रेन का वेट कितना होता है 1.4 kg और इसमें millions of nerve cells होते हैं. Look, this is the human brain. The brain has 3 main parts. ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? The cerebrum, the cerebellum and the brain stem. Cerebellum controls our sense of balance and allows us to make accurate movement. हमारी बॉडी जो बैलेंस करती है, जिस कारण हम खड़े रहते हैं, बैलेंस में चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो कौन करवाता है? सेरेबुलम. सेरेबुलम कंट्रोल करता है उसको, जिससे कि हम एक्यूरेटली चल पाए. द सेरेब्रम enables us to think, speak and remember things. जो चीज़ें हम सोचते हैं या बोलते हैं या याद रखते हैं, वो किसके कारण होता है? सेरेब्रम. The brain stem, also called medulla, controls breathing and heart beating. हमारी ब्रीदिंग को और हमारी हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन स्टेम या इसे मेड्यूला भी कहते हैं. The brain, spinal cord and nerves make a system called the nervous system. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों मिला के एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं नर्वस सिस्टम. The main function of the nervous system is to carry messages from one part of the body to another. अब ये नर्वस सिस्टम क्या फंक्शन करता है? ये मैसेजेस कैरी करता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. The spinal cord runs down the center of the backbone. बैकबोन के बीच में हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो बैकबोन है हमारी. Nerves are thread-like structures distributed all over the body. और nerves क्या होती हैं? ये thread की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है इनका और ये पूरी बॉडी में फैली होती है. See, human nervous system. Look, the brain is here, the spinal cord and the nerves. Fine, thread-like structure. Skill-based activity. Make a diagram of a human brain and label these parts. Cerebellum, cerebrum, brain stem. Also write a few lines on each part in your notebook. So like just now you saw the diagram of the brain and where the cerebellum is, the cerebrum and the brain stem or medulla. So you have to draw it, then you have to write few lines about it. Knowing more, the brain is divided into 2 sides. The left side of your brain controls the right side of your body and the right side of your brain controls the left side of your body. Now see an interesting thing. जो आपका लेफ्ट साइड होता है ब्रेन का, वो आपकी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है और जो राइट साइड होता है आपके ब्रेन का, वो आपके बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है. हार्ट. The heart is the main organ of the circulatory system which supplies blood to all parts of the body. हार्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन ऑर्गन है. किसका? सर्कुलेटरी सिस्टम का. ये क्या करता है? ब्लड की सप्लाई करता है हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में. It is a muscular organ and located in the rib cage between the 2 lungs. जो हमारे 2 लंग्स होते हैं उनके बीच में ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. रिब केज के अंदर है. रिब केज में जो 2 लंग्स होते हैं हमारे, उनके बीच में होता है. It is about the size of the fist of your palm. आपके पाम को जब आप ऐसे फिस्ट बनाते हैं तो इस साइज का होता है ये हार्ट. फाइन. Knowing more, cerebrum is the largest part of the brain. ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है cerebrum. Doctor listen to the heartbeat of patients by using a special instrument called stethoscope. डॉक्टर स्टेथोस्कोप से पेशेंट की हार्ट बीट को सुनते हैं. Now, what does the heart does more? It pumps the blood around the body. हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में. It travels in long tubes called blood vessels. Before it begins this journey, blood is pushed to your lungs. जैसे ये वाली जो जर्नी होती है वो शुरू करता है, इस जर्नी को शुरू करने से पहले पूरी बॉडी में ब्लड को ले जाने से पहले क्या होता है? जो ब्लड है वो पहले कहाँ जाता है? लंग्स में पुश किया जाता है. Then it is returned to your heart
to be pumped around your body. फिर ये वापस हार्ट में आता है, वहां से इसे पंप किया जाता है बॉडी के सारे पार्ट्स में. Blood also carries nutrients from your food to the cell. अब ब्लड और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है खाने से अलग अलग सेल्स में. Blood vessels. The blood vessels are of 3 types. 3 तरह के होते हैं blood vessels: arteries, veins, capillaries. The arteries lie beneath the skin, so they cannot be seen. अब arteries जो है वो हमारी स्किन के नीचे होती हैं, इसलिए उन्हें देखा नहीं जा सकता. They carry blood from the heart to all parts of the body. और इनका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड को हमारे हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में लेके जाते हैं. The veins carry blood from all the organs of the body to the heart. और veins क्या करती हैं, बॉडी के सारे पार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, हार्ट में. The capillaries are a network that forms the connection between the arteries and the veins. और arteries और veins के बीच का जो कनेक्शन है वो कौन फॉर्म करता है, capillaries. जो capillaries है इनका एक नेटवर्क होता है. The heart and the blood vessels work in coordination to form a system called the circulatory system. ये जो blood vessels हैं और heart है, ये एक coordination form करते हैं जिससे कि एक system बनता है, उसे कहा जाता है circulatory system. Knowing more, the journey of blood around the body is called blood circulation. जो body की जो journey होती है हमारे पूरे body में, उसे कहा जाता है blood circulation. Next comes the lungs. These are the lungs. Lungs is a pair of pink internal organs and situated in the either side of the chest. Chest के either side पे ये lungs situated होते हैं. ये pink internal organs हैं. Lungs help us to breathe and are the part of the respiratory system. ये जो lungs हैं ये किसका part है, कौन से system का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और ये हमें सांस लेने में मदद करता है. दे आर इलास्टिक लाइक अ स्पॉन्ज. दे आर, इनकी कैसे होती है, ये इलास्टिक होते हैं अनलाइक अ स्पॉन्ज. व्हेन वी ब्रीथ इन द लंग्स एक्सपैंड एंड फ्रेश एयर इज यूज्ड, बट व्हेन वी ब्रीथ आउट द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्योर एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी. देखिए फंक्शन कैसे करता है, जब हम सांस लेते हैं अंदर तो लंग्स हमारे जो होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और फ्रेश एयर यूज होता है. बट व्हेन वी ब्रीथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ते हैं और जो इम्प्योर एयर है, जो दूषित हवा है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है. ओके, पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज. अब आप करके देखिएगा, अपने नोज के सामने हाथ रखिएगा. Can you feel warm air? आपको गर्म हवा महसूस होती है? This is carbon dioxide. ये जो warm air है ये होती है carbon dioxide. We inhale fresh air from outside through the nose and from there it goes to the lungs via windpipe. अब जो हम fresh air nose के थ्रू बाहर से लेते हैं, inhale करते हैं, वो पहले कहाँ जाती है? It goes to the lungs. lungs में जाती है किसके थ्रू होके? wind pipe के थ्रू. Knowing more, a healthy person's heart beats 72 times per minute and 30 million times in an year. एक healthy person जो है उसका जो heart beat है 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है? 72 times. और पूरे ईयर में ये 30 million times बीट करता है हार्ट बीट जो है. Breathing. We breathe air to live. हम जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं. ब्रीदिंग इज द टेकिंग इन एंड गिविंग आउट ऑफ एयर. ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना. टू बिग स्पॉन्जी ऑर्गन्स कॉल्ड लंग्स हेल्प अस इन दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में कौन हमारी मदद करते हैं? लंग्स. आवर लंग्स आर एनकेस्ड इन अ रिब केज मेड ऑफ बोन्स. और हमारे लंग्स कहाँ होते हैं? एक रिब केज होता है, उसके अंदर ये लंग्स होते हैं. रिब केज इज मेड ऑफ बोन्स. Our rib cage expands when we breathe in air and contracts when we breathe out it. हमारा जो रिब केज है
बोनी स्ट्रक्चर जो है वो जब हम सांस लेते हैं तो एक्सपैंड करता है और जब हम अपनी सांस छोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। The lungs expand when we breathe in and contract when we breathe out. The process of breathing in air is called inhalation or inspiration. The process of breathing out air is called exhalation or expiration. Fine? We inhale a gas called oxygen and exhale a gas called carbon dioxide. हम inhale क्या करते हैं? ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी हेल्प्स अस टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो हैं नोज, विंड पाइप और लंग्स। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। आवर लंग्स आर कनेक्टेड टू द नोज थ्रू द विंड पाइप। हमारे जो लंग्स हैं वो हमारे कहाँ कनेक्टेड होते हैं? हमारे नोज से कनेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? विंड पाइप के थ्रू। There are millions of air sacs inside the lungs और lungs में millions of air sacs होते हैं। Air sacs are covered with a network of tubes that carry blood around the body। और ये जो air sacs हैं ये किससे covered होते हैं? एक network होता है tubes का जो कि blood carry करते हैं हमारे body के चारों ओर। Oxygen which is in the inhaled air comes to the air sac through the windpipe and gets absorbed by the blood। अब जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एयर से वो कहाँ आता है? एयर सैक में आता है थ्रू द विंड पाइप के थ्रू आता है एयर सैक में और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। इससे ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन टू द होल बॉडी। अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन को सब पूरे बॉडी में लेके जाता है। Along with the blood comes the nutrients to make energy। अब ब्लड के साथ साथ क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं जिससे कि एनर्जी मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस और इस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है? क्या बाहर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। दैट इज व्हाई इट इज सेंट थ्रू द ब्लड टू द लंग्स। अब ब्लड वापस इसे कहाँ भेज देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ आवर बॉडी और जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। द स्मॉल हेयर्स इनसाइड द नोज प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ इन थ्रू द नोज। जब हम सांस लेते हैं नाक से तो जो हमारे नाक में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को हमारी बॉडी के अंदर जाने से रोक देते हैं। बट इफ वी ब्रीथ इन थ्रू द माउथ डस्ट पार्टिकल्स कैन इजीली गो इनसाइड अस एंड कॉज इन्फेक्शन। लेकिन अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो डेफिनेटली जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे मुंह के थ्रू एंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी में और इन्फेक्शन फैलाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन इज द स्टमक। We eat food every day. Where does this food go and how do we get energy from it? अब हम डेली खाना खाते हैं, ये खाना जाता कहाँ है और हमें एनर्जी कैसे मिलती है इस खाने से? Let's see to it. When we eat food, the food goes down a tube called the food pipe into a muscular bag called the stomach. जब हम खाना खाते हैं तो ये जो खाना है ये एक ट्यूब के थ्रू, ट्यूब कौन सा है? फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाता है? एक मस्कुलर बैग में जाता है जिसे कि स्टमक कहते हैं। The muscles of the stomach along with the digestive juices work continuously to break down the food into a paste. After that, the proteins, vitamins, minerals, etc. break down in form of energy. अब ये जो स्टमक के जो मसल्स होती हैं डाइजेस्टिव जूस के साथ कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। क्या करने के लिए? ये जो फूड अंदर जाता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए और
क्या फॉर्म करते हैं, पेस्ट बनाने में हेल्प करता है। और उसके बाद क्या होता है, जो प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स वो ब्रेक डाउन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। This energy is converted into mechanical energy which help us to perform work and also for the growth and development of body. और ये जो एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होती है ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि हमें हेल्प करती है हम वर्क कर पाएं, और ये हेल्प भी करती है हमारे ग्रोथ में भी हेल्प करती है और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में भी हेल्प करती है। फाइन चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज the intestine, small intestine. From the stomach, the food passes into a pipe called the small intestine. अब stomach से खाना कहाँ जाता है, एक पाइप में जाता है जिसे कहा जाता है small intestine. It has an important role in digestion and absorbing food. इसका एक बहुत important role होता है digestion में और food absorption में. It receives juices from the liver and pancreas. ये small intestine जो है ये juices कहाँ से receive करता है, liver और pancreas से. The digestion of the foods that starts in the stomach is completed in the small intestine. जो food का digestion है जो कि stomach में start होता है वो कहाँ complete होता है, small intestine में. The digested food is absorbed into blood in the small intestine. और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये ब्लड द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट कम्स द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है वाटर एब्जॉर्ब करना. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मटीरियल फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस एज फेसेस. अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको हटाने में मदद करता है बॉडी से एनस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ फेसेस. नेक्स्ट इज पैनक्रियाज. द पैनक्रियाज लाइज बिहाइंड द स्टमक. स्टमक के पीछे पैनक्रियाज होते हैं. द पैनक्रियाज प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब पैनक्रियाज एक डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन करने में, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में. द डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज फ्लोज इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द डियोडेनम. अब पैनक्रियाज में जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो सबसे पहले फ्लो करके कहाँ जाता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है डियोडेनम. फाइन. Now comes the liver. The liver is the largest internal organ of human body. The liver is located in the abdomen. Liver कहाँ है, abdomen में होता है. It is found on the right hand side of the body. Body के right hand side में liver है. It is a wedge shaped red colored organ. एक wedge की shape का red color का organ होता है. It is made up of billions of cells and performs various metabolic functions. ये अलग अलग तरह के metabolic functions perform करता है और billions of cells से बना हुआ होता है. It is a storehouse of vitamins and minerals. Vitamins और minerals का storehouse है. It produces a yellowish fluid called bile which helps in the digestion of fatty food. जो हम fatty food खाते हैं उसके digestion में ये हेल्प करता है, क्या प्रोड्यूस करके, एक येलोइश फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसे कि बाइल कहा जाता है. इट ऑल्सो सेफगार्ड अस फ्रॉम सम पॉइजनस केमिकल्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड आवर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर कुछ पॉइजनस केमिकल्स भी बनते हैं, उनसे हमें बचाता है ये लिवर. इट मेक्स देम हार्मलेस. उन पॉइजनस केमिकल्स को ये हार्मलेस बना देता है. It also plays an important role in maintaining a constant body temperature of 37 degrees Celsius. 37 डिग्री का जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का उसको मेंटेन करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन, लिवर. If it stops working completely, death occurs within a few hours. अगर ये लिवर काम करना बंद कर देता है, completely काम करना बंद कर देता है, तो
डेथ हो जाती है कुछ ही घंटे बाद। किडनीज, our body produces many waste products inside it. The urine is the major liquid product of the body. अब हमारी बॉडी जो है बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। द यूरिन इज द मेजर लिक्विड प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। यूरिन उनमें से एक है। इट इज रिमूव्ड बाय द किडनीज, और ये किससे रिमूव किया जाता है? किडनीज के द्वारा रिमूव किया जाता है। किडनीज आर अ पेयर ऑफ reddish brown organs located on the back wall of abdomen behind the stomach. स्टमक के पीछे बैक वॉल है एब्डोमेन का, वहां पे ये किडनीज लोकेटेड हैं। द किडनीज एक्ट एज फिल्टर्स, और ये फिल्टर का काम करती हैं। दे क्लीन द ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इट। ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको ये क्लीन करती है, ब्लड को क्लीन करती है। The kidneys also remove excess water from the body in the form of urine, और यूरिन के फॉर्म में ये जो हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर हो जाता है उसको रिमूव करता है। Now children, let's read about the personal care of our body. Our body is like a machine. It works day and night. We do the work and take a rest. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, ये दिन रात काम करती है और हम इसमें काम भी करते हैं और रेस्ट भी लेते हैं। बट इफ वी नॉट टेक केयर ऑफ अ मशीन और डू नॉट ऑयल इट, इट विल बी रश्ड। अब अगर हम मशीन की देखभाल ना करें, प्रॉपर देखभाल ना करें मशीन की, उसको ऑयलिंग ना करें टाइम टू टाइम, तो वो खराब हो जाएगी। सिमिलरली, इफ वी डू नॉट कीप आवर बॉडी क्लीन एंड हेल्दी बाय टेकिंग दीज स्टेप्स, कौन से स्टेप्स? प्रॉपर डाइट, पर्सनल हाइजीन, प्रॉपर स्लीप, डेली एक्सरसाइज, देन ऑल्सो आवर बॉडी विल गेट डैमेज। मशीन की तरह ही अगर हम अपनी बॉडी का भी देखभाल नहीं करेंगे, उसको क्लीन नहीं रखेंगे, हेल्दी नहीं रखेंगे, उसमें क्या आता है, उनमें कौन से स्टेप्स आते हैं? प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी भी डैमेज हो सकती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज proper diet. The first thing needed for a body care is having proper diet at proper time. Timely खाना खाना और एक proper diet लेना। A balanced diet is necessary to build all body parts strong. सभी body parts को strong बनाने में ये जो balanced diet है ये बहुत helpful है और ज़रूरी भी है। Thus, all of us should take a variety of food so as to get all the nutrients to be healthy and strong. अगर हमें healthy और strong बनना है तो हमें हर तरह का खाना खाना ज़रूरी है जिससे कि हमें सब तरह के nutrients मिले। Personal hygiene. The second most important thing to take care of body is to keep it clean in order to keep healthy. अगर हमें अपनी body को healthy रखना है तो हमें उसकी देखभाल करनी ज़रूरी है और उसको साफ रखना ज़रूरी है। One should follow the rules of personal hygiene as follows. अब इन रूल्स को फॉलो करना जरूरी है पर्सनल हाइजीन के। Take bath daily. While bathing, properly rub all the body parts. रोज नहाना जरूरी है और नहाते वक्त सभी बॉडी पार्ट्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है। Dry your body with a clean towel. क्लीन टॉवल से अपनी बॉडी को ड्राई करना जरूरी है। Wash your hand before and after every meal. जितनी बार आप खाते हैं उससे पहले और उसके बाद में हाथ धोना जरूरी है। Brush your teeth twice a day. Then proper sleep. When we sleep, our body release and regain back our lost energy. जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? वो रिलीज करती है और रिगेन बैक करती है, जो लॉस्ट एनर्जी है उसको वापस लेती है। Thus, we all should take proper sleep to be healthy and strong. Proper sleep is very important part of the body care. अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Next comes daily exercise. Regular physical exercise is very important to maintain our body. अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रेगुलरली एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। It helps to improve and grow healthy body parts. इससे हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो और हेल्दी बनते हैं। Jogging, walking, running and swimming are very good physical exercise to keep our body healthy.
ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि बहुत अच्छे होते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में. फाइन, सो यू शुड exercise daily. Now the revision time, children. Human body is made up of a number of organs. The main internal body organs are brain, heart, lungs and kidneys. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. The heart pumps blood in our body. The brain is the control center of the body. Liver is the largest internal organ of the body. Kidneys clean the blood by filtration. Lungs help us to breathe. The stomach helps us to digest the food. Liver maintains a constant body temperature at 37 degrees centigrade. Now, exercise time, children. Take the correct option. An adult person breathes in and out about 15 times every minute, 12 times every minute, 10 times every minute. It's 15 times every minute. Human body has 1 kidney, 2 kidneys, 3 kidneys, 2 kidneys. Our body is like a car, computer, machine. It's like a machine. The internal organs of the body are found inside the body, outside the body, none of these. It's found inside the body. Lungs help us to eat, breathe, walk. They help us to breathe. The brain weighs about 2.4 kg, 1.4 kg, 3.2 kg. Weighs about 1.4 kg. Fill in the blanks. Here are some of the words given in the help box. Let's read them first. Brain, coordination, pancreas, liver, heart, bile, balance diet. The organ with the greatest number of jobs is the liver. So write down liver here. The dash pumps the blood. The heart pumps the blood. Liver produces a yellowish fluid called the bile. A dash is necessary to build all the body parts strong. A balanced diet is necessary. Balanced diet. The dash has 3 main parts. The brain has 3 main parts. The heart and the blood vessels work in dash to form a system. So they work in coordination. Coordination. Okay, children? The dash produces digestive juice. The pancreas produce digestive juices. Okay? Now, children, write T for true and F for false. Heart is divided into 4 chambers. This is true. The undigested food goes to the small intestine. No, false. We should not brush our teeth. False. The urine is the major liquid product of the body. Yes, this is true. Brain is an external organ. False. It's an internal organ. Heart is the main organ of the circulatory system. True. The blood vessels are of 2 types. No, false. The windpipe is divided into 2 bronchi. Yes, true. Answer the following questions. Again, these answers have to be written by you. एक बार चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें से आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और यहाँ लिखेंगे. तो आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं. हाउ डू वी ब्रीथ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन? व्हिच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी? व्हाट इज द रोल ऑफ किडनीज इन आवर बॉडी? नेम द 3 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट और स्लीप? नाउ मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू मैच कॉलम A to column B. Stomach. Stomach is the muscular bag. Lungs. Lungs, pink color internal organs. Liver. Liver is the largest internal organ. Heart. Heart pumps the blood. Then kidneys filters the body. Brain. Brain is the supercomputer. Intestine. Intestine
digestion of the food, and windpipe, 2 bronchi. Okay? The activity time, unscramble the letters and find the names of organs. यहाँ कुछ letters लिखे गए हैं जो कि scramble किए हुए हैं, उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं. आपको इनको correct करके लिखना है और एक organ का नाम आएगा. So here H-E-A-R-T, heart. H-E-A-R-T, heart. I'll write few and rest you will do yourself. Then here it's kidney. K-I-D-N-E-Y. Fine. This is intestine. I-N-T-E-S-T-I-N-E. Rest, find it yourself. Then what else you have to do? Paste the pictures of internal organs of your body in your scrapbook. Write their names and functions too. अब आपको क्या करना है, जो इंटरनल ऑर्गन्स अभी आपने पढ़े हैं, आपके बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके पिक्चर्स पेस्ट करना है स्क्रैप बुक में और उनके सामने उनके नाम लिखने हैं और क्या फंक्शन करते हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन. So children, thanks for watching the video. I hope you had a good time. So we'll meet soon with a new chapter, something new to learn, something more to study. Till then, stay healthy, stay blessed. Bye.